ایڈمیشنس کے لیے میڈیکل میں، انجینئرنگ میں اور دیگر جو فیلڈز ہیں اس کے اندر جو ایڈمیشنز ہوں گے اس کو بھی ہم کسی طرح سے ان کو اس میں اکوموڈیٹ کرائیں، اس میں بھی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی فیور بھی نہ ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل کالجز ہیں ان کو بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں تاکہ ان کا بھی کوئی میکانزم اسی طرح کا بنا دیا جائے تاکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بغیر اگر ایگزامس وہاں بھی نہیں ہو رہے ہیں تو وہ بھی کسی طرح آگے چلے جائیں۔ ایک تجویز اور بھی ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ کہ شاید وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہوگی، وہ یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو اپیئر ہونا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اپنی جو پرسنٹیج ہے اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے تو کوئی اسپیشل ایگزامس کروائے جائیں۔ اس میں اب یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات ایسے ہوں تاکہ ہم امتحان لینے کے قابل ہو جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے لیے وہ بھی مشکل ہوگا۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ کچھ ایشوز ضرور ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی کمیٹی کو ہم نے پھر کہا ہے کہ وہ بیٹھیں۔ اچھا، ایک اور بھی مسئلہ شاید آپ سوال بھی مجھ سے کر لیں کہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کچھ پیپرز میں فیل ہیں، کہ ایک دو پیپرز میں وہ فیل ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے یہ رائے ہے کہ اگر کوئی ایک دو پیپرز میں فیل ہے تو ہم اس کو پاسنگ مارکس دے کے اس کو ہم آگے پروموٹ کر دیں، اس اگلی کلاس کے اندر اس کو پاسنگ مارکس دے دیں۔ آنے والے دنوں میں جو کالجز کے داخلہ ہوں گے وہ کس کرائٹیریا پہ ہوں گے؟ مطلب جو پرانا سسٹم چل رہا تھا، کیونکہ ابھی تو آپ پروموٹ کر رہے ہو، پھر جب اگر اسٹوڈنٹس کو جو کالجز میں داخلہ لینے کے لیے تو کیا کس طرح وہ مطلب پسندیدہ؟ نہیں دیکھیں، دیکھیں میں نے آپ کو ایک بتایا کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ 3% اضافی نمبر دے کے ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو اب جس کالج میں ایڈمیشن جس پرسنٹیج پہ ہو رہا ہے اسی پرسنٹیج کے مطابق ہو جائے گا۔ اچھا، جو میڈیکل کے ایڈمیشنز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں الگ سے، اور ان ٹیسٹ میں جو بچہ یا بچی ایک ان کی جو بھی جو اسٹینڈرڈ ان کا ہوتا ہے ایڈمیشنز کا، اس کے مطابق اگر وہ نمبرز لے لیں گے تو وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں، اگر وہ نہیں لیں گے تو نہیں کریں گے، تو ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ تو فالو کریں گے، اس میں ہم نہیں چاہیں گے کوئی کمپرومائز ہو، اس لیے کہ یہ میڈیکل میں انجینئرنگ آئے گا۔ اس کے بعد ست ॿियो नंढिड़ो सुवाल मुंहिंजो इहो आहे त IB पास जेके हेड मास्टर आहिनि उन्हनि खे जुलाई ताईं एक्सटेंशन ॾिनी हुई, 1 महीनो उन्हनि में बचियो आहे, छा हाणे उन्हनि खे तव्हां पंहिंजो एक्सटेंशन ॾींदव, मुस्तकिल कंदव, छा कंदव हिननि जो, छा कंदव؟ دیکھیں، ایک تو جو مارکیٹس کی آپ نے بات کی ہے نا، مارکیٹس ہم جو ہماری یہاں یہیں پہ اسی ہال میں تمام تاجر تنظیموں کے نمائندے آئے تھے، چیف منسٹر صاحب بیٹھے تھے، اور اس سے پہلے جب ہم سے انہوں نے ملاقات کی تھی کیبنٹ کے کچھ ممبر سے، اس میں بھی ہم نے ان کو کہا تھا، اور بار بار ڈیمانڈ بھی وہ یہ کرتے تھے کہ آپ ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت دیں اور سخت سے سخت SOPs بنائیں، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہ ان کی اپنی ڈیمانڈ بھی تھی اور ان کی خواہش بھی تھی۔ ہم نے ان کے کہنے پر ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی اور SOPs بنائیں۔ اب SOPs پر عمل درآمد کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پہ کریں۔ جب 2-3 دن نہیں ہوا تو ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کی جو وائرس پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں آپ کی یہ دکانیں اور مارکیٹس، اور ان کو اعتماد میں لے کر ہم نے کل جو ہے وہ 7 کی قریب بازار جو ہیں وہ ساؤتھ میں سیل کیے اور کچھ دکانیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہم نے سیل کی تھیں، بڑی دکانیں۔ اور یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی تاجر اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو SOPs فالو کرنے ہوں گے، اگر وہ فالو نہیں کریں گے ہم دکانیں سیل بھی کریں گے، ہم جرمانے بھی کریں گے، اور جو اقدامات حکومت کر سکتی ہے وہ کرے گی۔ دوسرا، جو آپ نے IBA کے تھرو جو اپوائنٹ ہوئے تھے ہمارے ہیڈ ماسٹرز، ان کی بات کی، اس پر ہم بالکل کلیئر ہیں، ہم ان کو ریگولر کریں گے، ہم ان کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ایسے طریقہ کار سے ہم کریں گے جس سے آگے چل کر ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اب تو یہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ ایک فیصلہ آج اگر کوئی ہو جائے تو 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد بھی ایک عدالت کا فیصلہ کوئی آ سکتا ہے اگر ہم نے وہ کام غلط طریقے سے کیا ہوگا۔ تو ہماری خواہش صرف اتنی ہے کہ اگر ہم کوئی ایک کام کریں، ان کو اگر ریگولائز کریں تو کسی ایسے طریقے سے کریں جس سے آگے چل کر ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں اور وہ پرماننٹلی ان کے سر پہ کوئی تلوار لٹکی ہوئی نہ ہو۔ وہ ہم انشاءاللہ کریں گے، ان کے ساتھ پوری ہمدردیاں ہماری شامل ہیں۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ وہ جولائی میں اگر وہ ختم ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم وہ ایشو نہیں ہے، ہم ان کو کنٹینیو بھی کریں گے اور ان کو ریگولائز بھی کر دیں گے۔ جی، جب
नवी जमात में 60% नंबर लिए, नवी जमात के भी 3% इजाफा होगा, फिर 10वीं में भी 3% इजाफा होगा। देखें, अगर नवी जमात के पेपर्स नहीं हो रहे हैं मेरा सवाल पूरा जी, एक तो ये है कि नवी जमात के उन्होंने किसी ने 60% नंबर लिए, अब उसको 10वीं में पास कर रहे हैं आप, तो टोटल जो एग्रीगेट होगा वो 63% होगा। देखें दूसरा ये है कि अगर कोई किसी भी वजह से एब्सेंट रहा है नवी में, वो पेपर नहीं दे सका है, बीमार हो गया है, कुछ हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए क्या है, या कोई पेपर में अपीयर ही नहीं, मैं सॉरी, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। मेरे ख्याल है मैंने ज़्यादा इसकी वजाहत नहीं की, मैं और इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखें, जो 10वीं जमात में है इस वक्त या जो 12वीं जमात में है इस वक्त, उसके लिए हमारे पास रिज़ल्ट मौजूद है। 12वीं वाले का 11वीं जमात का रिज़ल्ट है और 10वीं जमात वाले का 9वीं जमात का रिज़ल्ट है। दोनों रिज़ल्ट उसके हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर किसी ने 9वीं जमात में 60% लिया था, तो जब हम उसको प्रमोट करेंगे, मतलब 10वीं से चला जाएगा, वो 11वीं में जाएगा। वो इस वक्त 10वीं में था, 10वीं का इम्तिहान नहीं हुआ, अब उसको 11वीं में जाना है। तो जब वो 11वीं में जाएगा तो उसको 3% इजाफी परसेंटेज हम दे देंगे। वो अगर 60 थी तो उसकी 63 हो जाएगी। सिमिलरली जो 12वीं जमात में था, उसका जो 11वीं जमात का रिज़ल्ट है, उसमें 3% ऐड करके उसको हम आगे 12वीं का एग्ज़ाम नहीं होगा और आगे चला जाएगा। लेकिन जो 9वीं जमात में इस वक्त है, उसका हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो उनको जो हम पास करेंगे उसको कोई परसेंटेज हम नहीं दे सकते हैं। ज़ाहिर है कि कोई हमारे पास बेस उसकी नहीं है, और उसको हम वैसे ही पास करेंगे और वो पास और फेल की बुनियाद पर वो होगा और वो आगे चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है, मैं उसकी वजाहत नहीं कर सका था, अब शायद क्लियर हो गया ये जी। अगले साल तो अल्लाह खैर करे, हालात ठीक होंगे तो ज़रूर देगा। जी जी, 10वीं पे, जो 10वीं पे होगा उस पे करेगा, उस पे करेगा। सही साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल और असातिज़ा भी परेशान है, जिस तरीके से आज सेकेंडरी कॉलेज ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि तमाम जितने भी रीजनल डायरेक्टर्स हैं वो जीपी फंड, प्रमोशन और जो दीगर मामला हैं उनके जो फाइल्स हैं, रिक्रूटमेंट्स हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी करके सेक्रेटरीट की तरफ भेजे। तो प्रिंसिपल और असातिज़ा भी परेशान है कि आया ऑफिस खोलने हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी डिटेल्स है घर पे तो मौजूद नहीं है। जाहिर सी बात है उसके लिए डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए कॉलेज खोलना। ये तो ऑफिस तो खुलेंगे ना हमारे। देखिए, अभी ऑफिस खुलना शुरू हो गए हैं ना, हुकूमत सिंध के कई ऑफिस खुल गए हैं, वो खुल जाएंगे ना। मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऑफिस खुलना शुरू हो गए हैं हमारे। नहीं तो कोई हर्ज नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि 24 घंटे में दे दो। हाँ जी, हुकूमत की पाबंदी के बावजूद जुलूस निकाले जा रहे हैं। सक्कर में भी आज मेरी के हवाले से जुलूस निकला है और कल कराची में भी जुलूस निकलने की बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, कैसे से हुकूमत रोकेगी? देखें, आपको ये इल्म है कि ये पूरे पाकिस्तान में जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ कि किसी भी किस्म के जो इज्तमात हैं उस पर पाबंदी है, जिसमें इज्तमात भी हैं और जलसे भी हैं, जुलूस भी हैं, सारे शामिल हैं। अब इसमें ये ज़िम्मेदारी सबकी बनती है, हुकूमत की भी है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन शहरियों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसमें हमारी मदद करें। देखें, जब तक हालात नॉर्मल थे, सारी चीज़ें हो रही थीं, सियासी जलसे भी होते थे, मजहबी इज्तिमात भी होते थे, तरावियाँ भी हो रही थीं और हर किस्म का इज्तिमा जो है उस पर हो रहा था और किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। अगर कोरोना की वजह से हालात इस तरह के हो गए हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाज़त दें, और ये पूरे मुल्क में है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पहले भी उलमाए कराम ने हमसे बहुत ताउन किया। देखें, जब हुकूमत ने ये कहा कि जी मस्जिद में सिर्फ मुतय्यन अफराद जो है वो नमाज जमात अदा करेंगे, 3 होंगे या 5 होंगे, तो अगर उलमाए कराम या शहरी ताउन नहीं करते तो हुकूमत ज़बरदस्ती तो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती थी ये। मतलब लाखों की तादाद में लोग जाते हैं हर मस्जिदों मसाजिद के अंदर, तो हमारे लिए मुमकिन तो नहीं था ज़बरदस्ती हम उस पर इम्प्लीमेंट कराते। लेकिन हम शुक्रगुज़ार हैं शहरियों के भी, उलमाए कराम के भी, कि उन्होंने ताउन किया, मदद की, और उन्होंने हुकूमत का जो फ़ैसला था उसको तस्लीम किया लोगों के हक़ में। इसी तरह अगर हुकूमत सिंध ने ये कहा कि जी तरावियाँ जो हैं लोग घरों पे पढ़ें, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं शहरियों का भी, उलमाए कराम का भी, कि उन्होंने हुकूमत सिंध के इस फ़ैसले पर अमल दरामद किया। अगर हुकूमत सिंध ने ये फ़ैसला किया कि जुम्मे के रोज़ 12 बजे से 3 बजे तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा,
ताकि लोग कम से कम घरों से बाहर निकलें। तो लोगों ने भी ताउन किया, उलमाए कराम ने भी ताउन किया, और इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर एक अच्छा उसका जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो बेहतर थी। मैं ज़रा पूरी कर लूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो बेहतर तरीके से हो गई। इसी तरह अगर जुलूस पर और या किसी भी किस्म की गैदरिंग पर, इज्तिमा पर पाबंदी है, तो ये ज़िम्मेदारी बनती है उलमाए कराम की भी, शहरियों की भी, कि वो हुकूमत के फ़ैसले पर अमल दरामद करवाने में हमारी मदद करें, ताकि हम अपने शहरियों को इस कोरोना वायरस की वबा से बचा सकें। जी साहब ये बता दीजिएगा, जब से आप लोगों ने लॉकडाउन में नरमी करी है, शहर के बाज़ारों में रश है, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो किस तरह देखते हैं कि दोबारा लॉकडाउन सख्त किया जाएगा या मामला तक कर्फ्यू की तरफ जाएंगे? देखें, ये ख्वाहिश थी बहुत सारे लोगों की भी, जो कारोबारी हजरात हैं उनकी भी, और यकीनन हमारे वज़ीर आज़म साहब की भी, कि कारोबार खुलना चाहिए। लोगों की मुश्किलात तो बहरहाल थी, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन जो कुछ अब हो रहा है पूरे मुल्क में, मैं सिर्फ सूबा सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह बाज़ारों में जा रहे हैं, जिस तरह खुल्लम खुल्ला जो है वो, मैं समझता हूँ कि अपने आप को वो एक्सपोज कर रहे हैं इस वायरस को लेने के लिए, ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये ज़िम्मेदारी हुकूमतों की भी बनती है, इंतज़ामिया की भी बनती है, लेकिन शहरियों की भी बनती है। अगर शहरी इस किस्म की गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे तो हुकूमतों के पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं होगा कि हम दोबारा सख्ती करें, और शायद पहले से ज़्यादा सख्ती करें। लेकिन ये फ़ैसला करना एक सूबाई हुकूमत के लिए शायद मुश्किल होगा। अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो मैं समझता हूँ कि बाकी सूबे भी और इवन वफाकी हुकूमत भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये बात करने पर मजबूर होगी कि हम कोई सख्त फ़ैसला करें। मैंने पंजाब के मिनिस्टर को भी कल सुना, वो भी बहुत ज़्यादा नाला थे, उनको भी गिला था ट्रेडर्स के साथ कि जी आप ये गलत कर रहे हैं, हमने अगर ये फ़ैसला किया था कि कारोबार हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इस तरह से आप हर चीज़ को वायलेट करें। इसी तरह KP में भी प्रॉब्लम है, इस्लामाबाद में भी प्रॉब्लम है। तो ये डिपेंड करता है शहरियों के अपने रवैये के ऊपर, जो ट्रेडर्स हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनके अपने रवैये के ऊपर, कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं हुकूमत की जो एहतियाती तदाबीर है उसके ऊपर। तो ये डिपेंड करता है हालात के ऊपर। मैं अभी बैठ के नहीं कह सकता हूँ कलम बंद कर देंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कलम खोल देंगे। अगर रवैया अच्छा रहा, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, तो ये मुमकिन है कि मज़ीद कारोबार खोलने की इजाज़त दे दे। लेकिन अगर इसी तरह की सूरत हाल रही और लोग आपस में मिलते जुलते रहे और हालात ख़राब रहे, तो मुमकिन है कि मज़ीद सख्तियाँ करनी पड़ें। ठीक है जी जी। ये तो देखें, ये तो डिपेंड, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर एक जुर्म किसी ने 5 साल 10 साल पहले भी किया हो और किसी को पता ना हो, और 5 साल बाद पता चले, तो आप इस बुनियाद पे तो उसको नहीं माफ़ कर सकते जी क्योंकि 5 साल पहले हुआ था। अगर तहकीकात हुई हैं और तहकीकात के नतीजे में ये चीज़ें सामने आई हैं कि उन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़े किए हैं और इसके वाज़े शवाहिद मौजूद हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, PMLN के ख़िलाफ़ हो सकती है, सरकारी अफसरों के ख़िलाफ़ हो सकती है, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हो सकती है, चैनल के मालिकान के ख़िलाफ़ हो सकती है। तो ये तो नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई शख्स अपोजिशन में है और उसने ज़मीन पर कब्ज़ा किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। दूसरा जो आपने NFC का सवाल किया, देखिए मैंने जो पढ़ा नेशनल फाइनेंस कमीशन के उस आर्टिकल को, ग़ालिबन 160 है, उसके मुताबिक जो TORs होने चाहिए, इन TORs में शायद थोड़ा सा उसको बढ़ा के दिया गया है। लेकिन इस पर हुकूमत सिंध अपना एक ऑफिशियल जवाब उनको भेजेगी। मेरा ख्याल है वो आ जाएगा तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा कि फिर उसके बाद हम उस पर बात कर लेंगे। माज़रत कबूल किया आपके।
मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन ये कि यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स होते हैं या मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं, उनका अपना एक तरीक़ेकार है और वो अपना टेस्ट अलग से लेते हैं। वो सिर्फ इस परसेंटेज की बुनियाद पे नहीं करते हैं। हम उनसे भी राब्ते में हैं कि अगर ये जो हम प्रमोट कर रहे हैं बच्चों को बगैर इम्तिहान के, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। हम उसके साथ राब्ते में हैं। शुगर सब्सिडी के हवाले से हुकूमत सिंध का ये दावा है कि 17, 18, 19 में तकरीबन हमने कोई सब्सिडी नहीं दी है। ठीक है, ये हुकूमत सिंध का दावा है, लेकिन अली माजिद शेख अभी कह रहे थे कि जनवरी के महीने में जो आपकी काबीना का इजलास हो उसमें 4 अरब रुपए जो है सब्सिडी दी है। क्या हकीकत है? आप एक तरफ दावा कर रहे हो कि मैं नहीं दिए, अगर नहीं दिए तो फिर वो दावा किस तरह कर रहे हैं? देखें, पहले आप आ जाएं वो जो कमीशन वज़ीर आज़म साहब ने बनाया, चीनी की कीमतें बढ़ी, उन चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ उस पर वज़ीर आज़म साहब ने एक कमीशन बनाया कि आप तहकीकात करें कि ये क्यों हुआ है, और फिर उसके अंदर उसके TORs बनाए गए। उसके TORs में ये लिखा हुआ है कि साल 2018 और 19, 2018 और 2019 के साल में जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ या सब्सिडी दी गई उस पर आप तहकीकात करें। साल 2018 और 19 में सूबा सिंध की हुकूमत में कोई सब्सिडी नहीं थी और कानून के जा सकते हैं, या तो उस कमीशन के TORs को चेंज किया जाए और बताया जाए कि नहीं 1947 से लेकर 2020 तक जितनी भी सब्सिडीज़ हुई हैं या चीज़ें हुई उसकी तहकीकात करेगा, फिर तो चलें ठीक है, सबको बुला लें। लेकिन अगर उसके TORs में लिखा हुआ है कि साल 2018 और 19 पे आप करें, तो फिर उससे पिछले सालों में वो नहीं जा सकते, नंबर 1। दूसरी बात जो उन्होंने, जिनका आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा है, वो भी सब्सिडी गुज़िश्ता बरसों की थी जो पेंडिंग थी, जो ड्यू थे हमारे ऊपर, जो ड्यूज़ थे पिछले, उसमें सब्सिडी ऐसी थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी दी थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी दी थी। और 15 दिन का ये जो एक साइकिल बताते हैं, वो 15 दिन ज़रूरी नहीं कि जिस दिन आप टेस्ट करें उसके 15 दिन के बाद दूसरा टेस्ट होगा तो वो नेगेटिव होगा। वो 10 दिन भी हो सकते हैं, वो 8 दिन भी हो सकते हैं, वो 9 दिन भी हो सकते हैं, और बाज़ केसेस में तो शायद कुछ 2-4 दिन भी हो सकते हैं। कि अभी गवर्नर साहब का जो आपने सुना, जब उन्होंने एक टेस्ट अपना करवाया दूसरा तो वो पॉजिटिव था और उसके कुछ ही दिनों बाद, शायद 2-3 दिन के बाद दोबारा कराया तो नेगेटिव हो गए वो। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो पॉजिटिव था तो 3 दिन के बाद नेगेटिव कैसे हो गया। इसलिए नेगेटिव हो गए कि वो पहले से चलता हुआ आ रहा था उनका। इसी तरह फैसल ईदी साहब का जब टेस्ट हुआ, तो जब पहला टेस्ट हुआ वो पॉजिटिव थे, फिर दूसरा टेस्ट हुआ कुछ दिनों बाद, 7-8 दिन के बाद वो पॉजिटिव थे, फिर जब 3-4 दिन के बाद उनका टेस्ट हुआ तो नेगेटिव हो गए थे। तो ये 15 दिन का साइकिल ज़रूर होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो वायरस किस दिन उसको वो वायरस लगा था और उसके बाद 15 दिन का होता है। तो ये समझ लेना कि जी वो सारे के सारे टेस्ट गलत थे, इन टेस्टों से ये कतन साबित नहीं होता। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, ये जो मीटिंग्स में मैं बैठता रहा, जो मैं सुना है, जो एक्यूरेसी है इस टेस्ट की वो 70% है, और ये दुनिया भर में है, सिर्फ यहाँ नहीं, ये दुनिया भर में ये एक्यूरेसी 70% है। अच्छा, हमारे यहाँ सूबा सिंध में ख़ास तौर पे चूँकि लोगों ने ये तय किया हुआ है कि हमने इसको मुतनाज़ा बनाना है, हमने इस पर शोर करना है, तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में जो अपोजिशन है वो इंतहाई ज़िम्मेदार है। इस इशू पर हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं, इस इशू पर हम हुकूमतों को ख़राब करने में नहीं तुले हुए हैं। अगर वहाँ पर भी ये चीज़ें हम निकालना शुरू कर दें तो आपको शायद सूबा सिंध के मुकाबले में ज़्यादा ख़राबियाँ वहाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो मैं बार बार यहाँ कहता हूँ ना कि ये कोई PTI की और कोरोना की बहुत करीबी रिश्तेदारी है। मतलब मैं बुरा बोलता हूँ कोरोना को, PTI मुझ पर पड़ जाती है। डॉक्टर्स बेचारे, मोतबर डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ कोरोना के खिलाफ करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI उनके पीछे पड़ जाती है। किसी इदारे की रिपोर्ट आती है कोरोना के खिलाफ, PTI उसके पीछे पड़ जाती है। तो इनको पता नहीं क्यों इतना नागवार गुजरता है कि हम कोरोना को बुरा क्यों कहते हैं, हम कोरोना को खतरनाक क्यों कहते हैं, हम कोरोना को पाकिस्तान के मुल्क के जो शहरी हैं उनका दुश्मन क्यों कहते हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे इन PTI के लोगों से, आपका अजीज़ तरीन कोरोना जो है वो मुल्क के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। खुदा के लिए हमें इससे लड़ने दो। अगर आप हमारे साथ खड़े होकर उससे लड़ नहीं सकते, आपको बुरा लगता है, तो कम से कम खामोश बैठ जाओ ताकि हम आपके इस अजीज़ से लड़ें और इसके मुल्क के लोगों की जान छुड़ाएं।